हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीसीआर रिक्रूटमेंट जो हुआ है उसका रिज़ल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे आपको अपना रिज़ल्ट चेक करना है। तो रिज़ल्ट सभी ने चेक कर लिया होगा। आई गेस all of you would have checked your result, and now it's time for document verification. So congratulations to one and all who have qualified for the DV. I want to say to all those candidates who have not made it to the DV, please don't demotivate yourself. Always be positive and motivated. Stay happy. Okay, this is not the last opportunity. ये आपका आखिरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके बाद आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। अगर ये आपका नहीं हुआ है तो इससे कुछ और अच्छा आपके लिए भगवान ने सोच के रखा हुआ है। ऑलमाइटी हैज़ केप्ट समथिंग स्पेशल फॉर यू। इफ़ दिस इज़ नॉट डन फॉर यू देन देर इज़ समथिंग स्पेशल इज वेटिंग फॉर यू इन द फ्यूचर। ओके, सो ऑलवेज कीप द प्रिपरेशन ऑन, नेवर गिव अप। ओके, यही मेरा सबसे कामना है। इन दिस वीडियो I will be talking about the important documents which you need to carry for the document verification and also how to attend the DV. So the statements will be written in English, so I will read it out and then I will explain it in Hindi for the Hindi viewers. Okay, the English viewers can easily understand as everything is written in English. So let's start the video. This was the result notification. You can see Indian Council for Cultural Relations, 22nd June. Notification for the post of APO, Assistant, Senior Steno, Junior Steno and LDC. Based on the marks obtained in Tier 1 exams and who also qualified Tier 2 exams as per result announced on 13th May 2021 at ICCR website at the link iccr2019.onlineregistrationform.org. Following candidates for the above mentioned 5 posts are requested to visit ICCR head office Delhi for document verification. Okay, so this is the list. I think you already would have viewed this list, whoever has been selected. तो ये इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. This is the official notice provided by ICCR for all the candidates who have been intimated and called for document verification. So all the candidates qualified for document verification are required to appear for DV along with the photocopies and original documents as follows. So these documents you need to carry. तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से सुन लीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसको तुरंत रेडी करवा लीजिए। ओके, लिसन इट केयरफुली एंड इफ समथिंग इज मिसिंग देन डू अरेंज इट टाइमली। फर्स्ट इज मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट। आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपके जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है, और बाकी 10th और 12th, ये सारे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स है। देन order or letter in respect of equivalent educational qualifications claimed indicating the authority with number and date under which it has been so treated in respect of equivalent clause in essential qualifications if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification. What does this mean? In the notification, the minimum educational qualification which is mentioned, if you have not done the exact qualification in your graduation or post graduation, you have done something relevant to this but it is equivalent, then you need to claim it by indicating the authority number with date. अगर आपके पास exactly जो educational qualification mentioned हुआ है वो आपके पास नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ और है, इक्विवेलेंट है, तो आपको जो भी अथॉरिटी से आप सर्टिफिकेट लेके आए हैं, जैसे आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी से है, तो वहाँ पे आप देख लीजिए आपके सर्टिफिकेट में उनका सिग्नेचर और स्टाम्प सील अच्छे से होना चाहिए और आपको वो मेंशन करवाना है पर्टिकुलर क्लॉज के तहत। नेक्स्ट इज कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरीज। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपका एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट है जो कि एनेक्जर में मैंशनड है। नोटिफिकेशन में आपको डिटेल मिल जाएगा। Every certificate which you need, the format of that is available in the official notification. You can check that. From there only you need to fill the certificate and take the consent of the concerned authority. For ex-servicemen,
Undertaking as per Annexure 5, serving defense personnel as per Annexure 4 if applicable, discharge certificate if discharged from armed forces. Annexure 4 and 5 are already given in vacancy notification. तो आपको वैकेंसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा ये Annexure 4 और 5, जहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आप वहाँ पे इस सर्टिफिकेट को फिल करके जो भी स्टाम्प वगैरह सील लेना है वो आप रेडी करवा लीजिए. नेक्स्ट is experience certificates for the post of program officer and assistant program officer, that is 7 and 5 years experience respectively. अगर आपने प्रोग्राम ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, और अगर आप असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा. ऑफ डीलिंग विद कल्चरल एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल्स एंड एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल मैटर्स एक्सेट्रा. इन सब फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फील्ड में. इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज, यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, public undertakings, NGOs, etc. The above is already mentioned in vacancy notification para 8B. तो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसमें पैराग्राफ 8B में आपको ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है. कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स एंड 1 ओरिजिनल वैलिड ID proof as date of birth while appearing for the document verification as listed at para 13(7). ओके, तो ये आपको मैंडेटरी है, आपको 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स एंड एक आपका ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ जो आपका हो सकता है. देखिए द ID प्रूफ यू कैन कैरी इज आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड इज ऑल्सो एप्लीकेबल, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल, एम्प्लॉयर ID कार्ड, गवर्नमेंट PSU, एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटो बियरिंग वैलिड ID कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. So I suggest you to carry at least 3 or 4 of the ID cards as you have to travel to the headquarter, that is New Delhi. So if your location is far away from that, you at least carry 3 to 4 ID proofs. तो ये आप 2-3 चीज़ें लेके जाइए क्योंकि आप दिल्ली जाना है आपको हेडक्वार्टर में. और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हैं. फॉर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यू कैन शो योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट. रेलिवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन में एप्लीकेबल हो तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको लेना है. इफ़ यू आर एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स देन यू नीड टू कैरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रेडी करवा लेना है पहले से. ए कैंडिडेट हु क्लेम्स change in name after matriculation on marriage or remarriage or divorce etc. the following documents shall be submitted. अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका नेम चेंज हुआ है मैट्रिकुलेशन के बाद, मैरिज करते समय या फिर रीमैरिज या फिर डाइवोर्स के समय, अगर ऐसा किसी का साथ केस है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. द पॉइंट्स यू कैन रीड इन डिटेल. ओके, नेक्स्ट इज एनी अदर डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर DV. So I request all the candidates who have been qualified to kindly share your DV call letter by hiding your personal details if you have received it in mail. अगर आपने मेल में रिसीव किया है कहीं से भी तो आप DV का जो आपका कॉल लेटर है उसमें आप क्या कीजिए, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ब्लर कर दीजिए, हाइड कर दीजिए और स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं आप. You can join us in the Facebook, Instagram and Telegram group. All the links have been provided in the description box. इन द टेलीग्राम यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट. अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट और टाइमिंग है. ये आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 APO पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए 50 कैंडिडेट्स को बुलाया इन्होंने, जो कि मंडे को 12 जुलाई 2021 में आपको रिपोर्ट करना है सुबह 9:30 बजे. सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा. वैसे ही आप देख सकते हैं असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 35 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, तो 5 टाइम्स जितना वैकेंसीज था इंटू 5 टाइम्स कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड. So these are the dates. Tuesday 13th of July. Reporting time 9:30 AM. 10 AM to 5 PM will be the document verification timing. Similarly for senior steno, junior steno and LDC, 10, 10 and 15 candidates have been called. 5 times the number of posts. Wednesday 14th of July. Reporting time 9:30 AM. 10 AM to 5 PM is the timing of DV. Accordingly you have to reach at New Delhi. So tickets वगैरह आप लोग सही से करवा लीजिए, इस शेड्यूल में आपको पहुँचना है जाकर. So all the best to all the candidates who have been qualified for DV and best wishes. Do subscribe to our channel if you are new to the channel because latest job updates and all government exam related notifications are being shared regularly in this channel. Also on your demand we can plan to bring current affairs daily, top 10 current affairs which will help you a lot
इन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।